Hello everyone, good morning. How are you all doing? Welcome Siddharth ji, welcome Meena ji, welcome Arati, welcome Anupam. How are you doing? Yes, good to see everyone. If you can switch on your cameras, so good to see you. कैसे हैं आप लोग? How are you doing? Meena ji, looking and seeing you after a long time. What happened? All Sir, good? Steve, all good and from office only. चलो good. कोई बात Saturday नहीं. we have offices ना, आपका session उसी time पे होता है तो I'm not able to join. No problem, no problem. I understand. Welcome Siddharth ji, welcome Arati, welcome Saket ji. Hi Anupam, welcome. So, as a part of my commitment, every Saturday 11 a.m. I go live with the training now. Every Saturday I'm doing some kind of a training. So Siddharth ji, you missed last time. I hope your mom is well now, right? Yeah, she is well. Yeah. And Monday I'm going to Mumbai for shifting. Okay. कोई बात नहीं. चलिए अच्छा है. Good things should keep on moving. And Yes. really good to see everybody working and doing something better. Welcome Saket ji. Good to see you here again. आपका गुड मॉर्निंग चेहरा पे थोड़ा लाइट नहीं आ रहा है. आपका चेहरा is little dark. हाँ एक्चुअली दूसरी जगह पे सॉरी चेंज कर लेते हैं पोजीशन. No problem. Welcome Anupam. How are you doing? Hope everything going well. Yes, good. So once again, I'm welcoming every one of you because you have committed yourself to be here with me for 1 hour. एक घंटे के अंदर ही हमारी ट्रेनिंग और Q&A हो जाता है and I want you to make this training again useful for you. And this training is all about content. See, I always say that हमारे और audience के बीच में ना the bridge is being bridged by only the content because we are not moving personally, right? We are not moving physically. What is moving is the content, as simple as that. So what should be and what is the psychology of the content? I need to understand and we need to understand, right? Because like, beyond the screen, we have people like us. I always say that there are human beings in which we are connecting with. So humans are governed by psychologies, emotions, and there's so many things behind that. So हमारा content जो है ना, हमारा content भी उस हिसाब से होना चाहिए जो हमारे audience तक पहुंचे और उनको जो चाहिए वो हम दे. If we just keep on singing our song without understanding what they want, so that content will go waste, right? So the purpose of this training is, again, I would say this is an extension to my last training which I did on, making your business sustainable and predictable. So this again relates to that only because content का बहुत बड़ा game है इसमें. So are you all ready?
for this training. And I definitely want to have questions from your side so that I can answer post the training is done. Right? Everyone ready? क्या हो गया? सबने अपने अपने cameras बंद कर लिए. What happened? All good? It's better to be on camera because it's a very small group. मैं छोटे छोटे ग्रुप में ट्रेनिंग करता हूँ. Don't bring more people. तो यदि आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. और we can have a eye contact and we can discuss better. Right? नहीं तो लगता है ना कि मैं खाली दीवार पे ना स्क्रीन पे बोल रहा हूँ खुद से. Doesn't feel good. Don't take me wrong, but this is what I feel. So if you're here, so this 1 hour, I don't want to take much of your time, but this 1 hour should be dedicatedly, devoted for this training, and I appreciate that. Right? So all ready? Everyone ready? Okay, good. Thank you so much. So let's start. I don't want to spend more time on anything other than the core thing which I want to do. Okay. So here I go. I'm using a similar format which I did for the last training because, as I said, this is somewhat I felt was a extension to the training which I did last time, because content is again a important aspect to whatever we are doing on social media, right? Good. So let's start. The purpose of this training is to understand what you want to create as a content, where are you going wrong, and what is the future of creating content. फ्यूचर में कैसा कंटेंट काम करेगा, बिकॉज पहले जो कंटेंट काम किया है आज सेम वे में काम नहीं कर रहा है. इफ यू आर देयर ऑलरेडी यू नो दैट, राइट? Things which have worked in the past may not be exactly working the way today and not even in future. So there are a lot of things which are dynamically changing. I always say this, especially in this virtual world. So we need to understand कि हमारा future हम content जो बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए. And I'll giving you certain examples of what I've been doing, what is working for me, and what you should be doing. Right? Done? Okay. So the purpose of the training, as I already told you, the things which you're doing wrong and what should be the future. So the goals of the training is understanding where are you doing mistakes while you are creating a content, number one. Number two is why are you doing these mistakes? You should understand, see, nobody wants to do any kind of a mistake. Am I right? Purposely, nobody does a mistake. But on the reality, we do certain mistakes without knowing. So we should understand what is the things which are doing wrong, so that it should not harm our business. And again, in future, what should be the content planning framework which is going to help our business. So welcome, Arati. Good to see you. I think you are coming on this training for the very first time. I welcome you all again. So this is part of the smaller training which I do every Saturday. And keep taking notes and do ask your questions post the training is done. It's not going to take more than 1 hour. I'll be finishing the training in around 30 to 40 minutes, not more than that. Right? So this is what I'm going to cover. There are 3 goals inside this training. Right? Now let's understand. So a little bit about me. People who are already knowing me, that's okay. People who don't know me, I don't want to discuss me about me on this training, but you can go and check out my profile, my credentials. So I call myself as a high ticket client acquisition coach, and I work with heart. So people have given me this title. My paid people have given me this title that I'm a coach with a heart, because I'm very much involved with my heart when I work with somebody, right? So now coming to the credentials, go and check what I have been into my entire career of around 24 years, right? I've been an entrepreneur, I've been an engineer, doing multiple businesses, making multiple business successful. And now I'm into coaching for the last 3.5 years. So I don't want to talk more. Please go and explore about me. Let's come to the point, right? So the first goal of this training is to understand what mistakes you're doing. So I hope everybody is writing posts on the social media. Am I right? Everybody is writing posts? Yes. Do you know when you are writing a post, what is the goal of that particular post? Anybody can tell me that if you are writing a post, do you have in your mind that this is the goal of my post? Or you are just writing a post because you need to write. Somebody has told you, somebody has guided you. Yes, Siddharth. Connecting with people. Connecting with people is a very vague term actually. Everybody wants to connect with people, right? Social media पे हम लोग connect ही तो कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, right? I mean, with emotions and understand their problems empathically. Okay, so we have multiple I stages. think so.
Yes, आई Vinay ji. थिंक सर तो व्हाट आई वांट टू डू, मतलब मैं कंटेंट अगर शेयर कर रही हूँ तो वो क्यों, उसके पीछे का वाई क्या है, मैं Exactly. कौन हूँ, मैं अपने बारे में क्या क्या बताना चाहती हूँ, वेयर आई कैन हेल्प देम। दिस इज एक्चुअली जब हम कंटेंट शेयर करते हैं दैट गोल हैज टू बी इन आवर माइंड Mm-hmm. कि if for example I'm coaching in a digital marketing or in a business coach or in a personal branding, तो मेरे उन पोस्ट में वो नजर आना चाहिए, वो कनेक्ट करना चाहिए, मेरे ऑडियंस को वो पता लगना चाहिए, Right. मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। Exactly. So अलग-अलग purposes हैं, but ultimate purpose is what? The ultimate purpose is to, there are Build multiple the purposes opportunities, there. sir. To build the authority. Who am I and what I am doing and what is the purpose? Exactly. Correct. See, now let me be very blunt with you. हम लोग सब सोशल मीडिया पे क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, सीधी सी बात है। यदि हम इसको गोलमोल बातों में ना करें तो वी वांट कस्टमर्स, वी वांट पीपल हु कम एंड पे अस। इज इट द राइट थिंग व्हिच आई एम सेइंग? कोई गलत नहीं है इसमें, Absolutely. राइट? Absolutely. Everybody who Building your is credibility and cash that credibility. एग्जैक्टली एंड गोल इज टू गेट पेड कस्टमर्स। सिंपल सी बात है, बिजनेस हमें पैसा चाहिए, पैसा के लिए हमें लोग चाहिए, लेकिन लोग हमें पैसा क्यों देंगे, कैसे देंगे, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट और रॉन्ग? राइट? इन एनी वेज वी आर डूइंग द सेम थिंग। अब हम अपने लैंग्वेज में उसको जैसे भी मर्जी बोलना चाहें, बट अल्टीमेट गोल इज व्हाट? वी वांट पीपल टू कम एंड पे अस so that we help them, and we definitely help them to build their business or transform their lives. Ultimate objective is that, but it comes with money. बिना पैसे के नहीं होता, आप भी फ्री में किसी को नहीं पता होगे, राइट? सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोस्पेक्टिंग आवर ऑडियंस, राइट? और उसके अलग अलग स्टेजेस हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि अलग अलग स्टेजेस के साथ कंटेंट हमारा कैसे रोल प्ले करता है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। सो आई मे बी लिटिल ब्लंट, डोंट टेक मी रॉन्ग, मेरा थोड़ा सा रहता है कि मैं थोड़ा सा मुफ्त टाइप के चीजें बोल देता हूं, बट अल्टीमेटली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो लेट्स accept that this is what we want and this is what is the thing which we need to do. Okay, sorry. Yeah, here it is. So we are writing posts. At times we don't know what are our goals and we don't know how to proper format those posts, right? यदि मैं आपको बोल दूं कि बहुत बड़ा आप एक पैराग्राफ लिख दो, कोई पढ़ने वाला नहीं है, because attention span is going down and down and down, less than 3 seconds. किसी को आपका पसंद नहीं आया पोस्ट तो फटाक से स्क्रॉल हो जाता है, am I right or wrong? Right? So we have to understand that. Similarly, if you are creating a carousel or a graphical post, it should be sequential with a call to action. So ये सारी चीजें हम सोच के नहीं करते बहुत बार। I'm not saying कि everybody is doing wrong, but my purpose is to tell you what is right. We are doing short videos as well, right? क्योंकि वीडियोस चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, वीडियोस तो बना रहे हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट पे बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, विदाउट रिसर्च इफ यू डू इट वोंट वर्क, करेक्ट? सो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है जो हम कर रहे हैं। और फिर हम लाइव शोज भी करते हैं, वी आर डूइंग लाइव शोज, वी आर डूइंग वेबिनार्स और एनी काइंड ऑफ वीडियो शोज वी आर डूइंग। हमारा पर्पस क्लियर नहीं है। नाउ आई टेल यू, देयर आर पीपल हु टेल्स एंड हु अंडरस्टैंड्स एंड अज्यूम, यार वेबिनार करते हैं ना, कस्टमर मिल जाएंगे हमें, विल डायरेक्टली सेल ऑन द वेबिनार। हैव यू हर्ड दैट? एंड देयर आर पीपल हु आर टीचिंग कि वेबिनार करो बेचो, वेबिनार करो और बेचो। अंडरस्टैंड कि वेबिनार बना क्यों और वेबिनार का एक्चुअल पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ अ वेबिनार इज फिल्टर योर ऑडियंस एंड गेट हाईली क्वालिफाइड लीड्स। वेबिनार इज नॉट टू सेल। जो लोग सेल कर रहे हैं दे मस्ट बी डूइंग इट फॉर लॉन्ग ईयर्स और उनका छोटा मोटा पैकेट बिक रहा होगा। कोई भी हाई टिकट वेबिनार पे सेल नहीं होता, आज के डेट में तो नहीं होता, unless and until you become Tony Robbins or Russell Brunson kind of a people or Alex Hormozi. ऐसे लोग शायद बेच भी दे लेकिन दूसरे लोग नहीं बेच पाएंगे। So the purpose of webinar is to get highly qualified leads. We filter them. तो हर चीज का एक पर्पस है, एंड विदाउट नोइंग द पर्पस इफ यू आर डूइंग समथिंग, तो उसका पर्पस जब हमें पता ही नहीं है तो हमें उसके सीक्वेंसेस भी नहीं पता होंगे, तो रिजल्ट कैसे आएगा? Am I right? So there are a lot of things which are creating gaps in the industry, which I'm going to tell you. Right now, there are people who are advertising some way or the other, organically. There are people who are trying to sell their books, or they are trying to sell their physical events as well on the social media. Again, it doesn't work for a beginner. जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं उनके लिए शायद काम कर भी जाए, बट इज इट गोइंग टू हेल्प यू? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड सी, राइट? एंड सिमिलरली इफ वी आर नॉट क्रिएटिंग वेराइटी फॉर योर ऑडियंस, बोर हो जाएंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप ही को मैं रोज दिन, वट एवर फेवरेट डिश यू हैव, इफ यू लाइक पनीर और यू लाइक नॉनवेज, एक ही डिश यदि मैं आपको रोज खिलाऊंगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा? यू विल फील बोर्ड, राइट?
So similarly, content is what? Content is something which we are creating for our audience. और ऑडियंस को हम रोज एक ही खाना देंगे, एक ही खाना देंगे, एक ही खाना देंगे, तो ऑडियंस क्या होगा? बोर होगा, नहीं होगा? राइट? तो हमें उनको बोर नहीं करना है ना. ये कंटेंट हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हम ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, सो दैट हमारे ऑडियंस हमारे साथ इन्वॉल्व हो. और इसका मल्टीपल पर्पसेस है. राइट? सो दीज आर फ्यू ऑफ द मिस्टेक्स व्हिच वी आर डूइंग. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट so that we don't repeat these mistakes. Right? Is it clear? Right? Now tell me, out of the 6 points, यदि मैं आपको बोलूं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? 1 2 3 4 5 6, ये जो मैंने कैटेगरी बनाई है, क्या कर रहे हो उसमें? आपको क्या मिस्टेक लगता है? कैन यू जस्ट पुट इन द चैट 1 2 3 4 5 6 में कौन सा में आप अपने आप को फिट करते हो? वेलकम सौरभ जी. जस्ट पुट इट इन द चैट. आपको क्या लगता है कि आप जिस भी उसमें रहते हो, यू कैन जस्ट पुट इट. या अनुपम सेज 3. ओके, हाउ अबाउट अदर्स? 1 2 3 4 5 6 लिखना है, कोई सा भी. 1 4 6. ओके, गुड, नो इश्यूज. सी द पर्पस इज नॉट टू टेल यू कि आप कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हो. मिस्टेक्स छोटी ही होती हैं, उसको हमें करेक्ट करना है. दिस ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट दैट. राइट? ओके, let's move on. Okay, now मैं आपसे पूछना चाहता हूं, what do you understand by a content? हम लोग सब content तो बना ही रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं content, और content क्या होता है? Can anybody answer me this question? What do you mean by a content? What do you understand by a content? Anybody can answer? When I say content, what do you understand by content? What it is actually? It has to be two way. देखिए, छोटे ग्रुप में करता हूँ so that we can discuss. It's not like a one way प्रवचन कि मैं बस बोले जा रहा हूँ आप सुने जा रहे हो. Let's interact, let's discuss, and then we'll move on slowly. छोटी ट्रेनिंग रहती है, आपको समझ आएगा. Yes, Anupam, go ahead please. Content is anything which we are posting in social media Okay, for engagement, to build relationship. okay, ठीक है, nice, good answer. Anybody else? Basically, it's for own promotion, because what you told in starting, that we are all looking for customers. Yes. So we are promoting ourselves through our content, promoting our emotions, our values, our credibility, our authority Okay. to the So- audience. Okay, so my question is, what is a content? The question Yeah. here is, what is a content? वो तो हम कर रहे हैं, तो प्रोसेस तो बहुत सारा है ही. What is a content? My question is, what do you understand by a content? Definition of a content in simple words. मैं बड़ा लंबा चौड़ा नहीं चाहता हूँ, मैं बस सिंपल चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं कंटेंट, हमारे दिमाग में क्या आता है? Content is it is without it's a promotion for self without paid ads. Okay, थोड़ा सा आप बहुत अंदर चले गए. Anyway, Sir, content is basically any kind of sharing of knowledges or views or stories in a structured manner via any kind of either in the pictorial views or in the videos or via these text content, text things. right, good answer as well. ठीक है, so you understand content. मैं इसको बहुत सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा, आपको सुन के लगेगा कि ये क्या है, तो मुझे आता ही था. But let me do it for you. For me, what is a content? On social media, anything you do on a social media platform is a content. Anything. You react. Reaction में हम क्या करते हैं? Like करते हैं, love करते हैं, emojis डालते हैं, अवतार देते हैं, GIFs डालते हैं. That is a reaction which we are doing. That is a content. Minded. हम comments करते हैं, text format में, graphics content में, video format में. That is also a content. हम पोस्ट करते हैं, हम अपने पोस्ट करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में. दैट इज अ कंटेंट. और हम शेयर करते हैं अपने पोस्ट या दूसरे के पोस्ट शेयर करते हैं. दैट इज आल्सो अ कंटेंट. सो ऑन दिस सोशल मीडिया, एनी सिंगल क्लिक व्हिच वी आर डूइंग इज अ कंटेंट. इज इट मेकिंग सेंस? मैं इसको इलेबोरेट करूंगा फिर से कि एनीथिंग व्हिच यू आर डूइंग ऑन अ सोशल मीडिया इज अ कंटेंट. करेक्ट? अब इसके रिपरकशंस कैसे होते हैं, इसका पर्पस क्या है, दैट आई एम गोना कवर. Is it clear? In simple words, right? Okay. Let's understand this. हमारा रीजन, मैंने कहा ना कि हम जानबूझ के तो कोई गलती नहीं करता. We all are learned people and we know what we need to do. But कई बार क्या होता है, because something we don't know, we do some mistakes.
we commit some mistakes because we don't know what to do exactly. तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, again with the help of a funnel, I want to and make you understand कि content में क्या दिक्कत होती है और क्या गड़बड़ी होती है, right? So if I tell you कि हमारा जो funnel है, you must be aware about this terms, tofu, mofu, biofu. Yes, tofu is top of the funnel. So when we consider a funnel, top of the funnel, middle of the funnel and bottom of the funnel. अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि आपका कंटेंट क्यों नहीं काम करता है. हमने इतने सारे कंटेंट तो बनाए. लेट्स से टॉप ऑफ द फनल कौन लोग होते हैं? टॉप ऑफ द फनल वो लोग होते हैं जो हमें नहीं जानते हैं. ऐसा नहीं है कि दिस ऑनलाइन वर्ल्ड एवरीबडी इज नोइंग अस. आपको पता है कितने लोग हैं इस ऑनलाइन वर्ल्ड में? देयर आर मोर देन 4.6 बिलियन पीपल ऑन दिस ऑनलाइन वर्ल्ड. लेट्स से मैं फेसबुक पे बात कहता हूँ, सिर्फ फेसबुक पे देयर आर 4.6 बिलियन पीपल, राइट? क्या आपको लगता है कितने सारे लोग आपको जानते हैं? किसी को नहीं जानते, राइट? किसी को नहीं जानते. तो जब इतने सारे लोग हैं, हम लोगों को नहीं जानते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें अपना कंटेंट ऐसा बनाना होगा कि पहले हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो हमें नहीं जानते हैं. मेकिंग सेंस, राइट? सो टॉप ऑफ द फनल इज आर द पीपल हु डजंट नो अस. वो हमें जानते ही नहीं. जब हमें जानेंगे ही नहीं तो अभी अगला बात तो नेक्स्ट की आ जाएगी. तो टॉप ऑफ द फनल आर पीपल वेयर वी हैव अननोन पीपल. अननोन पीपल के लिए जो कंटेंट होगा वो अलग होगा rather than people who know us a little. Am I right? Clear? तो पहले मैंने आपको ये समझा दिया कि एक फनल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल. टॉप ऑफ द फनल में पीपल आर फ्रोजन, दे डोंट नो यू, दे डोंट नो मी, राइट? दे आर द पीपल हु आर अननोन टू अस. मिडिल ऑफ द फनल में देयर आर पीपल हु नो अस अ लिटिल, थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ है, या थोड़ा सा ट्रस्ट ज्यादा दिन से जान रहे तो थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट भी बना हुआ है. सो दीज पीपल कम एंड फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कोल्ड एंड वार्म. एंड देयर आर पीपल हु आर ऑन द बॉटम ऑफ द फनल, जिन्होंने हमारा कुछ ना कुछ टेस्ट किया हुआ है, हमारे कंटेंट को कंज्यूम किया हुआ है. दे नो एंड दे आर रेडी फॉर सक्सेस. नाउ यू टेल मी, क्या आपको लगता है कि ये सब लोगों के लिए एक तरह का कंटेंट काम करेगा? नाउ यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, राइट? अब हम एक कंटेंट बनाएं, यदि एक ही तरह का कंटेंट बनाएं, तो क्या हमारा एक तरह का कंटेंट सबको हेल्प करेगा? Is it going to work for everyone? No. And that's the mistake we do. So we need to understand कि हमारा, let's say कि today I'm doing a post, हमारा पोस्ट कौन से लोगों के लिए है? क्या टॉप ऑफ द फनल के लिए, मिडिल ऑफ द फनल के लिए, बॉटम ऑफ द फनल के लिए, राइट? जब तक हमारा ये चीज क्लियर नहीं होगा तब तक विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कंटेंट है कहाँ जा रहा है और क्या वर्क कर रहा है. सो वी आर लॉस्ट. हम कंटेंट बना देते हैं, उसको सोचते हैं यार कुछ नहीं हुआ. हमें खुद नहीं पता है कि हमने किसके लिए कंटेंट बनाया, राइट और रॉन्ग. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट फील लाइक दैट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो इज दिस डायग्राम क्लियर कि हमारे सिस्टम में देयर आर पीपल हु डोंट नो अस, देयर आर पीपल हु नो लिटिल अबाउट अस, देयर आर पीपल हु आर knowing more about us, and there are people who know much about us. Correct? तो हर लोगों के लिए अलग तरीके का कंटेंट बनना चाहिए. तो हमारे पास वीक में है, लेट्स से वी प्लान अ वीक्स ऑफ कंटेंट, तो हमें हर तरह के कंटेंट क्रिएट करने हैं सो दैट वी केटर टू ऑल दिस काइंड्स ऑफ पीपल. क्योंकि एक कंटेंट एक ही तरह के ऑडियंस को केटर करेगा, माइंडेड, राइट? सो वी नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ अ वैरायटी सो दैट वी केटर टू द एंटायर फनल. मेक सेंस? ओके, लेट्स मूव ऑन. Okay, so now the purpose of creating content. The purpose of creating content is, first of all, we need to attract audience. जो मैंने आपको बताया, जो टॉप ऑफ द फनल है, जो हमें जानते नहीं है, हमें उनको अट्रैक्ट करना है. करेक्ट? We need to attract people from the outside world to our world, and that is the purpose of the top of the funnel customers, right? उनको हमें अट्रैक्ट करना है. अट्रैक्ट करने के बाद हमें उनको इंगेज करना है, हमें उनको नर्चर करना है, हमें उनके साथ कुछ ऐसा करना है जिससे ट्रस्ट बिल्ड करे. वो उनके दिमाग में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, उन ऑब्जेक्शंस को हमें हटाना है और उनको हमें बोलना है कि भाई आप एक्शन लो, राइट? सो अल्टीमेटली पुट टुगेदर एवरीथिंग, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ जेन्युइन ट्रस्ट. जेन्युइन वर्ड मैंने इसलिए डाला कि ट्रस्ट ऐसी चीज है जिसको आप बाई नहीं कर सकते हो, आप भरोसा खरीद नहीं सकते. am I right? You cannot buy trust. So trust has to be earned, trust has to be built. And how it is going to be built? When people see you working something
on a platform where people are benefiting out of it, right? So मैं हमेशा कहता हूँ कि respect, trust, कुछ ऐसी चीजें, honesty you cannot buy, you have to prove it. और social media is giving us a platform where we understand कि हाँ ये चीजें possible है. यदि फिजिकल वर्ल्ड में जाए तो बहुत मुश्किल है. फिजिकल वर्ल्ड में क्या आप एक एक आदमी को पकड़ के बोलोगे भाई मेरे पर भरोसा करो, नहीं हो सकता, राइट? Okay, so I see Taruna and Ruchi joining us. Welcome, Ruchi and Taruna. Welcome. We are talking about contents, right? Welcome, Ruchi. Hope you had a great trip. Good to see you. Okay, nice. So I'm talking about content की content पे हम क्या गलतियां करते हैं. तो हमारे को समझना है कि हमारा जो पर्पस है वो पर्पस क्या है, और यदि मैं पूरे फनल को डिवाइड करूं तो उस फनल में हमें कौन से ऑडियंस को टारगेट करना है. हमारा कंटेंट बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल. दैट मेक्स द बेटर सेंस फॉर देम एज वेल. और हमें भी पता है कि आज मेरा कंटेंट इस ऑडियंस के लिए है, कल मेरा कंटेंट इस ऑडियंस के लिए होगा. सो वी कैन देन डिसाइड एंड सी द डेटा, वी कैन एनालाइज द डेटा कि हमारा कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है. Making sense? Okay. Okay, good. So we'll move on with another slide now. So अब आप समझिए कि behind the scene क्या हो रहा है. ये तो आपने समझ लिया कि हमें ये पर्पस है हमारे डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करने का. अब behind the scene क्या हो रहा है जो मैंने आपको बताया. अगेन विद द डायग्राम ऑफ द फनल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस यू. सबसे पहला है कनेक्शन. जो लोग अनअवेयर हैं, जो हमें जानते ही नहीं, जो हमारे टॉप ऑफ द फनल के ऑडियंस है, उनके साथ हमें क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन बनाना है, राइट? आप किसी से बात कैसे शुरू करोगे जब तक आप उसको जानते ही नहीं हो. सो द फर्स्ट थिंग इज टू बिल्ड कनेक्शन, राइट? सो मैंने आपको एरो बना के दिखा है. टोफू में कनेक्शन इज रिक्वायर्ड हियर. अनलेस एंड अनटिल वी बिल्ड अ कनेक्शन, हाउ आर यू गोइंग टू टॉक? किसी अनजान आदमी से आप कैसे बात करोगे? बात करने के लिए कुछ तो जानना पहचानना होगा ना उनको. सो फॉर people who come under this category of top of the funnel, here we need to build a content which is making them understand us and willing them to connect with us. The purpose is connection. Am I right? सेकंड में क्या होता है, जो लोग कोल्ड और वार्म है उनको चाहिए कि हम उनको कुछ वैल्यू दें, उनको हम कुछ नर्चरिंग करें. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हमें जान तो गए हैं, देख लिया उन्होंने, कुछ टाइम से हमें देख रहे हैं, नाउ दे नो अस, दे हैव कनेक्टेड विद अस, दैट्स गुड. But they have not worked with us, they have not felt us, they have not consumed our content. वहां पे उनको वैल्यू चाहिए, वहां पे उनको नर्चरिंग चाहिए. सो देयर इज अ डिफरेंशिएटर. उस तरह का कंटेंट हमें बनाना पड़ेगा जहां पे लोगों को लगे अरे यार ये तो काम की बातें करते हैं, राइट? और उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं और हमारे बिजनेस में ये हेल्प कर सकता है. सो दैट कम्स अंडर द मिडल ऑफ द फनल वेयर वैल्यू और नर्चरिंग इज रिक्वायर्ड. एंड ऑन द बॉटम ऑफ द फनल what we want to build is trust and persuasion. एक बार जब आप ये टॉप ऑफ द फनल में जहां पे लोगों को आपने कनेक्ट कर लिया, उनको आपने वैल्यू दिया, नर्चर किया, उसके बाद आता है कि वहां पे आप उनको ट्रस्ट और बिल्ड करें, राइट? ये ट्रस्ट और परसुएशन बिल्ड होता है जब हम बॉटम ऑफ द फनल के करते हैं, ताकि लोग हमें कुछ टाइम से जान चुके होते हैं, उनको हमने कुछ वैल्यू दे चुका होता है और उनको हमारी दी हुई चीजें उनके लिए काम कर रही हैं. तो जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं, हमारे बोलने से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा जब तक उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको यूटिलाइज नहीं किया है. Am I right? Correct? Making sense? Is this diagram clear to every one of you? Any doubts? All done? आप देख रहे हो कि अलग अलग सेट ऑफ ऑडियंस के लिए कैसे अलग अलग कंटेंट हमारे को क्रिएट करने की जरूरत होती है, which we by default don't think of, but we need to think of if we are into this era of 2024. क्योंकि जो चीजें 21, 22, 23 में काम कर रही हैं, जरूरी नहीं कि वही चीजें आज सब फिर से काम करेंगी. So you need to be very aware, right? Should I move ahead? Yes? Okay. Now, how do you ensure that your content speaks to your audience at different stages? जो मैंने बताया different stages, मैंने आपको बताया funnel का. There are different stages of the audience, right? और इन stages के लिए how do you ensure that your content is creating good sense for them, right? Let's understand that now. So what you need is here the balance of emotional and rational content, right? So पहला क्या करना पड़ता है, spark the heart. So these are my words. I say कि जब तक हार्ट में स्पार्किंग नहीं होगी ना, आप मूवीज में देखते हो वो हीरो हीरोइन देखते हैं एक दूसरे को, मन में घंटी बजती है या कुछ उस तरह का,
right? These are pictorial diagrams which shows that somebody has seen someone and उनके दिल में कुछ हुआ. यहाँ पे क्या है, आपको उसी हिसाब से सबसे पहले अपने ऑडियंस के हार्ट में स्पार्क क्रिएट करना है. और स्पार्क कैसे क्रिएट होता है? इमोशन से क्रिएट होता है, राइट? सो यदि मैं इसको फिर से रिलेट करता हूँ, इफ आई गो बैक एंड टेल यू कि यहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे सबसे पहले इंसान हार्ट से कनेक्ट करता है, आपके इमोशन से कनेक्ट करता है. So your top of the funnel should be catering to emotional quotient of your brain. Now I don't want to get into the brain psychology. आपको पता है right brain, left brain, emotional quotient, intelligent quotient. These are all bigger terms. I don't want to get into that. मैं बस को नहीं बोलता हूँ कि जो इंसान पहले इंसान से कनेक्ट करता है ना, वो क्या होता है? इमोशन होता है, राइट? वो इमोशन किसी भी तरह से ट्रिगर हो सकता है. वो इमोशन लुक से हो सकता है, फील से हो सकता है, वर्ड से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है. But first of all, you have to spark the heart. Do you agree to it? कि सबसे पहले दिल जुड़ते हैं हमारे, राइट? दिल को जोड़ना आना चाहिए. If we are creating a content, we need to understand कि हमारा कंटेंट उनके दिल को ट्रिगर करे, उनके हार्ट को ट्रिगर करे. और एक बार जब हार्ट इमोशन से ट्रिगर हो जाता है, then we talk about the brain. क्योंकि बाय डिफॉल्ट ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक छोटी सी चीज है, आप लोगों को पता होगा. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम लोग दिल से डिसीजन लेते हैं, उसके बाद दिमाग से जस्टिफाई करते हैं. am I right? ये सबके साथ होता है, चाहे वो 2 रुपये की चीज खरीदे, चाहे 2 करोड़ की चीज खरीदे. हमेशा सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग होता है वो हमारे हार्ट से होता है, और उसको जस्टिफाई हम माइंड से करते हैं, और ओवरऑल फिर डिसीजन लेके कहते हैं यस वी आर गोइंग टू डू दिस. am I right? ये होता है कि नहीं होता? यू कैन अप्लाई टू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. आपके बच्चे के लिए कुछ खरीदना है, आपको खुद के कुछ लेना है, आपको घूमने जाना है, राइट? लेट्स से अभी समर्स के दिन है, राइट? बहुत गर्मी पड़ रही है. इफ यू वांट टू गो टू अ वाटर पार्क, वाटर म्यूजियम, राइट? आपको पता है वहां जाके आपको एंजॉयमेंट करनी है. सो पहले आप सोचते हो, अपने दिल को बोलते हो यार चलो मजे करते हैं, राइट? मजे करने के लिए यू नो दैट यू नीड टू गो एंड पे देयर, करेक्ट? बट यू टेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि हाँ यार मुझे तो मजा करना है, वी नो मैं फैमिली के साथ जाके वाटर पार्क में मजा करना है. तो वी टेक अ डिसीजन फ्रॉम आवर हार्ट, जिसका पर्पस क्या है? अच्छा फील करना, या मजे करना, फन करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, राइट? ये हमारा इमोशनल क्वोशंट है. एंड फॉर दैट वी प्रिपेयर आवर ब्रेन कि यार वहां जाके मेरे को पैसे देने पड़ेंगे हर राइड का, या उसकी एंट्री टिकट होगी. वी नो दैट कि फ्री में कुछ नहीं होता, बट वी डू, करेक्ट? मूवी देखने जाते हैं, हमें पता है मूवी देखने जाएंगे तो हमारा पैसा लगेगा, बट वी गो एंड एंजॉय बिकॉज वी प्रिपेयर्ड आवर माइंड्स. तो सबसे पहले हमारे दिल में डिसीजन होता है, दैट इज व्हाट आई से, स्पार्किंग योर हार्ट एंड देन इग्नाइटिंग द ब्रेन, so that our brain adjust and say yes, now we both are in sync, mind and heart. If both are in the sync, then we take a decision, right or wrong? कई बार हमारे दिल में होता है कि चलो यार, लेट्स से यदि मैं अपने बारे में बोलूं, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी वेग एग्जांपल. अभी मैं पेपर में देख रहा था कि अभी एवरेस्ट पे भीड़ लगी हुई है. आई सॉ वन ऑफ द आर्टिकल, बहुत सारे लोग एवरेस्ट के बेस कैंप पे जा रहे हैं, राइट? मेरा मन किया मैं भी जाऊं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ट्रैकिंग वगैरह में अच्छा लगता है मुझे. तो लेकिन आज की डेट में अभी मेरा वो प्रायोरिटी नहीं है. ऑल्दो मेरा दिल कह रहा है मुझे जाना चाहिए, मेरा माइंड कहता है नहीं यार अभी क्या जरूरत है, बैठ के काम करो यार समर वेकेशन से, काइंड ऑफ. So whenever our mind and brain are in sync, then we take a decision, otherwise not. So here also inside the content, what we have to do, as simple, we have to ignite our spark our heart and then ignite the brain, right? Make sense? So यहाँ पे रेशनैलिटी आती है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा रेशनल सोचता है और हमारा दिल हमेशा इमोशनली सोचता है. सो यदि हम इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना लें तो हमारा कंटेंट वुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर. एम आई राइट? ठीक है, इज ओके? डू यू एग्री टू दिस? स्पार्किंग द हार्ट एंड इग्नाइटिंग द ब्रेन. ओके, कोई कुछ बोल नहीं रहा, हाँ ना? सब कोई सुन तो रहे हैं? राइट, थैंक यू. राइट, गुड. थोड़ा सा कम्युनिकेशन होता रहता है, मुझे भी पता चलते रहता कि हाँ थिंग्स आर गोइंग वेल. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. सो द आंसर इज कंटेंट प्लानर फ्रेमवर्क. जो मैंने फ्रेमवर्क अभी बनाया है, आपको मैं अब एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपका कंटेंट का फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए जिससे आप हर चीज को कैटर कर सको. बिकॉज यू हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर ऑडियंस, देयर आर डिफरेंट लेवल्स इनसाइड द फनल, और उसके लिए अलग अलग आप कैसे करेंगे ताकि आपको हर जगह आपका कंटेंट अच्छे से काम करे. So here is a simple diagram. Between you and your client there are 3 things.
योर हार्ट, योर माइंड एंड योर वॉलेट। am I right? मैंने वॉलेट को जानबूझ के डाला है। कई बार हमारा दिल भी कहता है कि नहीं यार ये करना चाहिए, माइंड भी कहता है ठीक है, लेकिन जब बात आती है पैसे लगाने की, हम कहते हैं नहीं यार छोड़ो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। am I right? ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेट्स से हमें एक ड्रेस ही खरीदना है, हम कहते हैं यार अभी कोई फंक्शन तो है नहीं, मन कहता है चल यार एक ड्रेस खरीद ले, बहुत पसंद आ गया, हम देख रहे थे अमेजोन पे या कहीं ऐड देखा, मुझे बहुत पसंद आया। माइंड भी कहता है चल यार खरीद लेने में क्या बुराई है, बट फिर वॉलेट कहता है कि यार अभी क्या जरूरत है, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी, जब जरूरत होगी ना, जब किसी किसी के शादी का इन्विटेशन आएगा या घर में कोई फंक्शन होगा उस समय खरीद लेंगे। होता है कि नहीं होता है? राइट, सो वी डू दैट। सो हमारे और हमारे क्लाइंट के बीच में देयर आर थ्री थिंग्स, हार्ट, माइंड एंड वॉलेट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा कंटेंट कैसे काम करे कि इन तीनों चीजों को हम ओवरकम कर पाए। राइट, यही पर्पस है ना, जो मैंने बोला कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हिच वी आर डूइंग ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो दैट वी गेट कस्टमर्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, और अंदर अंदर तो सबके यही है कि चलो भाई हमारे को कस्टमर चाहिए, हमारे को कस्टमर लेना है। सो कस्टमर तब आएगा जब, कस्टमर तब बनता है जब वो पैसे देता है। सो वी नीड टू cater to all these three elements of your content so that your customer is willingly coming and paying you, right? Okay, so now let's see what next is there. Okay, so now what happens is heart acknowledges the things, right? Mind, जो हमारा माइंड है, जो ब्रेन है, वो एक्सेप्ट करता है और फिर हम एक्शन लेते हैं पॉकेट से। सो ये छोटे छोटे मैंने पिक्टोरियल डायग्राम्स इसलिए बनाए टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझ में आती है चीजें, बट व्हेन यू सी अ पिक्टोरियल डायग्राम इट impacts your brain better, and that is why I come with multiple infographics and other elements inside my presentation, right? So what does this art does? It acknowledges that we need something, either it is a need or a desire। पेन और डिजायर हमेशा हम बात करते हैं, या तो हमारे को पेन होता है या हमारे को डिजायर होता है। वो पेन और डिजायर हमें कहाँ महसूस होता है? हार्ट में महसूस होता है, हमारे, हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, सबसे पहले हमारे बॉडी को महसूस होता है, राइट? सो what does the heart does? It acknowledges the things, whether it is a pain or a desire, then our mind accepts. So when the mind and the heart goes in sync, we take action from our pocket, right? Now here it is, हार्ट कहाँ काम करता है? टॉप ऑफ द फनल पे। माइंड कहाँ काम करता है? मिडिल ऑफ द फनल पे, वेयर वी टेक अ डिसीजन सेइंग कि भाई ये कैसा है, ये बंदा मेरे लिए सही है कि नहीं है, या क्या करना है। और बॉटम द फनल वर्क्स विथ पॉकेट। मेकिंग सेंस टू यू और नॉट? टेल मी। हार्ट, माइंड एंड पॉकेट, ये तीन चीजें मैंने एक्चुअली डाल लिया। हार्ट एंड माइंड की तो बातें हर कोई करते हैं, पॉकेट की बात लोग नहीं करते। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग पर्पसली बिकॉज आई नो कि बिजनेस पैसे से होता है, और यदि आपके बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, या आपको बिजनेस करना नहीं आ रहा है, राइट? बिजनेस इज ऑल अबाउट helping somebody. Yes, you need to have an intent to help somebody, but you cannot do for free for long time. चलो थोड़े टाइम के लिए आप कर भी सकते हैं, बट यदि आप पैसे ना ले तो आपकी बिजनेस का क्या होगा? हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव एंड ग्रो इफ यू डोंट टेक मनी, राइट? सो पॉकेट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? ओके, वेलकम सौरभ जी, बड़ी देर के बाद देखा मैंने आपको। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स अंडरस्टैंड कि इन सब चीजों के लिए करने के लिए हमें करना क्या होगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क, आई एम गिविंग यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू नीड टू डू व्हेन यू क्रिएट अ कंटेंट। सो मैंने कहा पर्पस, अब मैंने आपको बताया था, देयर आर मल्टीपल पर्पसेस ऑफ दिस कंटेंट, राइट? अट्रैक्ट, एंगेज, नर्चर, बिल्ड ट्रस्ट, ये मैंने आपको बताया। अब ये कैसे आप करोगे? सो दिस इज वेयर दिस कम्स इनटू प्ले। To attract your customers, you have to create emotional and transformational content. Left में जो सबसे पहला बार मैंने दिखाया है, you see, to attract you have to create some kind of a content which are emotional in nature and transformational in nature. When I say emotional and transformation, it is about your own journey. आप कैसे थे, आपने क्या देखा, आपके मन में क्या इमोशंस आया when you are young, when you are adult, when you are doing whatever, and what transformation you have gone through. लेट्स से कि 5 साल पहले आप किसी और फील्ड में थे, आज आप किसी और फील्ड में हैं। लेट्स से कि आपके दिमाग में 5 साल पहले दुनिया के बारे में कोई और परसेप्शन था, आज कोई और परसेप्शन है। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर,
that comes under this category, which is emotionally driven to attract your audience. Am I right? क्योंकि पहला कनेक्ट जो बनता है इमोशन से बनता है, and emotions are triggered by this kind of a post where you show your emotions and you show your transformation. Right? Is it making sense? To attract, mind it. To attract new audience, you have to have emotional post and your transformational post. The next part is once somebody is already attracted, they are onto the top of the funnel, you need to engage with them. Engage करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? You need to share your wins and challenges. आपके जिंदगी में क्या विन हुआ, क्या challenges आया, आपने कैसे overcome किया, that is, you know, what relatability comes into play then. लोग रिलेट करना शुरू करते हैं कि यार ये भी मेरे जैसा इंसान है, इन्होंने भी मेरे जैसी चीजें देखी हैं, सुनी है, झेली है अपनी जिंदगी में. सो वी कनेक्ट विथ ईच अदर व्हेन वी हैव रिलेटेबिलिटी क्वोशंट देयर. हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं ये हर बार एग्जांपल देता हूँ. हम लोग मूवी देखते हैं राइट, और हम लोग बायस हो जाते हैं मूवी को देख के हीरो की तरफ, एक्टर और एक्ट्रेस की तरफ. और यदि विलेन कुछ गलत करता है तो हमें गुस्सा आता है विलेन के लिए, यार ये क्या कर रहा है, करते हैं ना. हमें पता है दीज आर एक्टर्स, इट इज अ पर्पसफुली मूवी मेड फॉर अस टू एंजॉय एंड एंटरटेन, बट स्टिल वी कनेक्ट विद इमोशंस. राइट, हीरो को गोली लग जाती है, हमें बुरा लगता है. और मूवी की बात में क्या करूं, मैं सीरियल्स के बारे में, जो लोग सीरियल्स देखते हैं, मैंने कहानियां सुनी है, मैं सीरियल्स नहीं देखता. आप देखोगे कि उसमें जो एक्टर वगैरह कुछ होते हैं, उनको कुछ हो जाता है तो घर पे लेडीज रोती हैं. मैं अपने घरों में बता रहा हूँ, मैंने अपने घरों में कुछ रिलेशंस में देखा है कि लोग ऐसे कहते हैं यार ऐसा हो गया, सीरियल में ऐसा हो गया, एंड देयर पीपल आर क्राइंग. ऐसा मुझे नहीं पता कि सब लोग करते नहीं, बट द पॉइंट हियर इज पीपल कनेक्ट विथ इमोशंस. although we know that these are all movies or short telecasted serials, whatever it is. तो यहाँ भी हमें वैसा ही काम करना है अपने ऑडियंस के लिए, टू कनेक्ट विथ इमोशंस. राइट, तो यहाँ पे इंगेजमेंट्स की मैं बात कर रहा था. इंगेजमेंट में क्या होता है, हम अपने विंस और चैलेंजेस शेयर करते हैं, तो रिलेटेबिलिटी आता है, हम रिलेट करना शुरू करते हैं, यार हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ है. राइट, सो लोग उसे इंगेज करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज टू नर्चर. टू नर्चर अगेन, नाउ यहाँ पे क्या आता है, ब्रेन काम करना शुरू हो जाता है. ये जो पहले दो एलिमेंट्स है, अट्रैक्शन एंड एंगेजमेंट, ये हमारे इमोशन को ट्रिगर करता है, हमारे हार्ट को ट्रिगर करता है. जब हमारा हार्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ये बंदा ठीक है और ये बंदा हमारे जैसा ही है, तब हमारा ब्रेन काम करना शुरू करता है, यार ये हमारे काम का है क्या है. इज ही और शी एबल टू हेल्प अस, इज ही और शी एबल टू टेक अस फॉरवर्ड इन अ जर्नी. तो ब्रेन काम करना शुरू करता है, वहां पे नर्चरिंग की जरूरत होती है. देयर यू शो योर वैल्यू एंड नॉलेज बेस्ड ऑन द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू टीच देम. आप उससे रिलेटेड वैल्यू और नॉलेज शेयर करिए. और आज के डेट में फिर से एक चीज मैं बोलता हूँ यहाँ पे, विच आई विल बी कवरिंग एज ए कंक्लूजन. बहुत सारे लोग नेट से निकाल के चीजें लाके ज्ञान देने लगते हैं. आज का डेट वो नहीं है. देयर वॉज अ टाइम जब ये चीजें चलती थी. टुडे पीपल वांट टू नो व्हाट यू हैव डन योर लाइफ. आपका नॉलेज क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, दैट पीपल वांट टू नो. राइट, सो पीपल आर नॉट गोइंग, क्योंकि नेट पे हर कुछ अवेलेबल है आज के डेट में, इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी देयर. पीपल आर नॉट हियर टू see the content which is copy pasted from any of the search engines or any of the AI tools. लोग जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया, what did you do, what is your experience, that is working as of now. आपका एक्सपीरियंस वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है when you nurture those people by saying that this is what I have been doing, right? And to add to this, नेक्स्ट लेवल इसका होता है ट्रस्ट वाला, जहां पे आपको टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरीज शेयर करना होता है. इफ यू हैव डन समथिंग गुड फॉर समबडी, आप हमेशा अपने बारे में तो अच्छा ही कहोगे. वी आर देयर टू बीट आवर ओन ड्रम्स ऑन सोशल मीडिया, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं. हमारे अच्छा कहने से नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल अ थर्ड पर्सन सेज गुड अबाउट अस. सो दैट कम्स एज अ फॉर्म ऑफ अ टेस्टिमोनियल और अ सक्सेस स्टोरी. यहाँ पे ऑडियंस में ट्रस्ट बिल्ड होता है बाय सीइंग दैट यू आर डूइंग गुड फॉर अदर्स. एम आई राइट? Is this process clear? ये जो 4 स्टेप का मैंने प्रोसेस बनाया है, इज इट प्रोसेस क्लियर? अब इसके हिसाब से आपको अपने कंटेंट को डिवाइड करना है और बनाना है. मेकिंग सेंस? राइट, ओके, गुड. लेट्स मूव ऑन अगेन. सो व्हाट एक्चुअली यू आर गोइंग टू डू. अब ये मेरा इमोशनल फैक्टर था. यदि आप देखेंगे हार्ट फैक्टर में मैंने आपको बताया है कि अपने हार्ट को कैसे करना है, राइट, इमोशनल कनेक्शन को कैसे बिल्ड करना है. नाउ आई एम गोइंग टू कवर द माइंड फैक्टर,
कि अपने माइंड को, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को कैसे फीड करना है अपने ऑडियंस के ब्रेन को एक्चुअली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑफर्स बनाते हैं, राइट। हम ऑफर्स क्रिएट करते हैं जो कि सेलिंग है, कंपेलिंग है। लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं, इररेजिस्टिबल ऑफर। इररेजिस्टिबल इज व्हाट यू गो एंड ग्रैब इमीडिएटली। तो हम उस तरह के ऑफर बनाएंगे, हम उस तरह के बोनसेस क्रिएट करेंगे, हम उनको एक्सपीरियंस देंगे, राइट। और हम उनको आउटकम के बात करेंगे। ओके, लेट मी आस्क यू, आप लोगों को पता है, आई जस्ट गिव अ रियल एग्जांपल, टेस्ला, एवरीबॉडी नोज अबाउट एलन मस्क, राइट। टेस्ला का जो एक वाई मॉडल कार है, वो सबसे ज्यादा बिका था without spending a single rupee on ads, right? How was it possible? हर कंपनी, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सब ऐड करती हैं। Anybody knows about this case study? How Tesla did this? Anyone? तो मैं बताता हूँ। Tesla did it entirely organically. How amazing! Tesla जैसी बड़ी कंपनी, एलन मस्क जैसा इतना बड़ा उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, स्पेस में लोगों को भेज रहा है, उसने ऐड नहीं करा, और उसकी वो कार जो मॉडल है सबसे ज्यादा बिकी। कैसे पॉसिबल हुआ? उसने इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने अपने यूजर को एक अलग सा एक्सपीरियंस दिया। दिस इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर। इफ यू सी माय स्लाइड, मैंने आपको बोला एक्सपीरियंसेस मेक देम फील वैल्यूड। अब क्या हुआ उसमें, एलन मस्क ने क्या किया, जिन बंदों ने पुरानी कारें खरीदी थी और जो बंदे नए कार खरीदने वाले थे, उनके लिए उसने एक एक्सपीरियंस क्रिएट किया। एक्सपीरियंस क्या क्रिएट किया? इफ यू डोंट नो, आई जस्ट शेयर विद यू। उसने क्या किया, जो बंदे ये मेरा कार खरीदेंगे ना, उन बंदों को मैं उनकी फोटो विद अ कार मैं स्पेस में लगाऊंगा। इजंट इट अमेजिंग? स्पेस में, जैसे हम लोग कार डिलीवरी लेते हैं ना, तो फोटोग्राफ खींचते हैं शोरूम वाले, राइट। उसने बोला कि उस तरह की एक पिक्चर में खींचूंगा और आपका फोटो मैं स्पेस में पोजीशन करूंगा। अब ये चीज कौन कर सकता है? बट ही डिड इट, एंड दैट वाज वन ऑफ दोज अट्रैक्टिव फीचर्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस। सेकेंड थिंग व्हाट ही डिड इज, उसने बोला कि जो लोग भी मेरे इस कार को खरीदेंगे, अगले जितने भी मेरे कार्स लॉन्च होंगे, उनकी जितनी भी पार्टीज होंगी, उसमें आपकी फ्री एंट्री होगी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करेंगे, उसमें यू पीपल विल बी इनवाइटेड एज अ गेस्ट फॉर फ्री। क्या हुआ, उसने एक भी पैसा नहीं दिया, बट उसने यूजर इंटरफेस इतना अच्छा क्रिएट किया कि उसके इन 2-3 एलिमेंट्स से, और उसने 2-3 चीजें करी, ये 2 प्राइमरी थी जो मैंने आपको बताया। दैट कार मॉडल वाई, यू गो एंड चेक ऑन गूगल और इंटरनेट, यू विल फाइंड टेस्ला का वाई मॉडल क्यों बिका और कैसे बिका और कितने यूनिट्स बिके उसमें। That is what is the power of giving a unique experience to your audience, right? Without ads. So when you are inside this coaching industry, let you understand and design something for your customers to give them a unique experience, right? मैंने भी बहुत सारी चीजें सोच रखी है अपने कस्टमर को यूनिक एक्सपीरियंस देने के लिए। आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन वेरी नियर फ्यूचर। तो वो नई क्रिएटिव चीजें आपको भी सोचनी होंगी, सो दैट यू मेक योर ऑडियंस फील वैल्यूड, राइट। और उनको कुछ सब्सटैंशियल मिलना भी चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। एंड देन द फोर्थ पॉइंट इज यू नीड टू फोकस ऑन द रिजल्ट्स, क्योंकि एवरीबडी हु इज कमिंग इन दिस इंडस्ट्री, एवरीबडी वांट्स रिजल्ट्स। हर किसी को रिजल्ट चाहिए। यू कैनॉट जस्ट कीप ऑन टॉकिंग अबाउट योर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यू हैव टू गिव देम रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे तो दैट इज व्हाट एवरीबडी वांट्स। आज मैं भी आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, एग्जांपल्स दे रहा हूँ। If somebody is there from my paid customer and they are getting customers, they are getting results, that is what they want. Everybody wants results, right? So that is how our brain works. तो ये वाला जो एलिमेंट है जो मैंने आपको बताया, ये वाला स्लाइड, दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द माइंड फैक्टर, द ब्रेन वाला, राइट। इमोशन वाला मैंने अलग किया और ये माइंड वाला मैंने अलग किया, राइट। देखिए ये हार्ट फैक्टर था, अब ये माइंड फैक्टर आ गया। यदि हम इन सब चीजों को करेंगे, अगेन एक एक टॉपिक इसमें बहुत लंबा है। यदि मैं ऑफर की बात करूं, ऑफर इटसेल्फ विल टेक अनदर 2 to 3 days to make you explain everything about offers, how it works, and उसके बहुत एग्जांपल्स है। बोनसेस, अगेन यू हैव टू क्रिएट मल्टीपल बोनसेस। बोनसेस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन सी चीज को बोनस बनाना चाहिए। अगेन दीज आर अगेन बिगर सब्जेक्ट्स विच I cannot cover in the short training, but you need to understand कि ये सारे एक एक जो टॉपिक मैंने लिखा है ना,
ये सारे टॉपिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है जिसको आपको धीरे धीरे मास्टर करना है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट, द पॉकेट फैक्टर। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि हाँ जी आपको कस्टमर चाहिए एंड यू हैव ऑलरेडी क्रिएटिंग कंटेंट, आपने कंटेंट बहुत अच्छा बनाया, आपने उनके हार्ट को ट्रिगर किया, आपने उनके माइंड को रेशनल किया, नाउ यू वांट देम टू टेक एन एक्शन, राइट? द पॉकेट फैक्टर, ये आपके चाहने से नहीं होगा, ये आपके चाहने से नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन हैज अ नीड और अ डिजायर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बने हुए हैं, बड़े बड़े स्कूल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स बने हुए हैं, करेक्ट? एक जगह हमारे को दर्द होता है तब हम भाग के जाते हैं हॉस्पिटल या डॉक्टर्स, डॉक्टर हमें नहीं बुलाता, ना हमें अम्यूजमेंट पार्क वाले बुलाते हैं, ना हमें मूवी थिएटर वाले बुलाते हैं। क्या होता है, हमारी नीड होती है, यदि हमारी तबीयत खराब है या हमारे घर में किसी की भी तबीयत खराब है, वी रश टू द डॉक्टर, वी रश टू द हॉस्पिटल। तो वहां जाके डॉक्टर से हम बार्गेन नहीं करते, हम सीधे बोलते हैं भाई कितना फीस है बताओ मुझको ठीक करो, राइट? सो देयर इज अ पेन, वी पे फॉर दैट पेन। वहां पे हम अपना पॉकेट ढीला करते हैं। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस सिंपल लैंग्वेज, बट एक्चुअली क्या होता है वहां पे हम कोई मोल भाव नहीं करते, करते हैं क्या? नहीं करते ना, हम जाते हैं उनको पैसा देते हैं, दे हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म एंड वी गो एंड पे देम फॉर देयर एक्सपर्टीज बिकॉज वी आर इन नीड। और यदि मैं बोलूँ हमें प्लेजर के लिए जाना है, हम मूवी जा रहे हैं, हम वाटर पार्क जा रहे हैं, हम अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, वहां पे हम पैसे खर्च करते हैं क्योंकि हमारी एक डिजायर होती है, राइट? सो द हमारे चाहने से लोग डिसीजन नहीं लेंगे अनलेस एंड अनटिल दे आर इन नीड और दे आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ डिजायर, राइट? सो पॉकेट फैक्टर के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छी नीड होना और एक अच्छा डिजायर होना। सेकेंडली, दे आर कमिटेड टू टेक एक्शन, राइट? नीड होनी चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नीड है बट दे आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन, करेक्ट? अब ऐसे केस में जब कोई आगे काम करने को राजी नहीं है तो आप हर किसी के लिए काम नहीं कर सकते, राइट? सो यू हैव टू understand that those people who are really committed only, they'll be you know loosening their pocket and they'll be coming forward, and obviously they need to ready for investment because anything and everything which you do is the best investment in yourself। यदि आप इन्वेस्टमेंट करके सीख लेते हो तो आपके पॉकेट पे थोड़ा सा टाइम तो लगता है भारी, बट इट इज एंड ऑफ द डे this is what you make good money from, right? So that is how you do this। so now you understand, मैंने 3 चीजें आपको कवर करी यहाँ पे। सबसे पहला था हार्ट फैक्टर, कि हार्ट फैक्टर को इग्नाइट करने के लिए, स्पार्क करने के लिए आपको कैसे कंटेंट को बनाना है। माइंड फैक्टर को क्रिएट करने के लिए और उसको ट्रिगर करने के लिए आपको कैसी चीजें करनी है, और पॉकेट के लिए आपने क्या करना है और कस्टमर ने क्या करना है, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू। You can just create an offer, you can give them a platform, the decision has to be taken by the client, by the prospect, so that they keep on moving forward with you, right? If you do all this, then it makes sense for them, right? Okay, now the content works the best with emotional plus rational content। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तभी हमारा कंटेंट काम करेगा। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग, राइट? तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बना के चलना है। And when we plan our content strategy, what we do is we trigger the emotional content and we rewire the brain with logic। इसी चीजों को मैंने आपको बैकएंड पे समझा दिया है कि कैसे काम करता है। लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, लोगों को बोनस चाहिए, आउटकम्स चाहिए, और यहाँ पे यदि हार्ट फैक्टर में लोगों को एंगेजमेंट चाहिए, इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी प्लान अ कंटेंट स्ट्रैटेजी, राइट? मेकिंग सेंस? Now, again, aga pictorial diagram, your content and your client. These are the 3 elements which ensures that you are connecting through the right kind of a content, right? Your heart should feel good about it. Your mind should be okay to accept that, and your pocket should say, yes, I'm ready to go ahead. So now this is the final framework. What you have to do? You have to attract people with emotions. That is step number 1. Then you bring them in your funnel. Step number 2 is their logic, which is rationalizing their emotions, क्योंकि पहला पूरा emotion है, दूसरा logic है, which is rationalizing your emotions, and third is the action। as simple as that। is this framework good? ठीक है, समझ आ रहा है? nice।
तो ये पिक्टोरियल चीजें ना थोड़ी सी आसान हो जाती हैं समझाने में, इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम लगा के इन सब चीजों को यहाँ पे डालता हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज इमोशन, सेकंड थिंग इज लॉजिक, एंड third thing is action. If you understand this framework and create your content based on this, I think your content will work the best, right? So what we are doing, hearts, minds and action. So इसी को मैंने दूसरे words में लिखा है, emotional, professional and transactional. We have to create content which are emotional in nature, we have to create content which are professional in nature, and we have to create content which are transactional in nature. This is the gist of the framework, right? This is what you want, right? Everybody wants कि हमारे content से लोग emotionally connect करें, हमारे को assume करें, accept करें as a professional, and then take the transactional things for us, right? Now I'm going to show you how I have been using this framework for me. So the concept is clear. Everybody has understood the concept. Now I'm going to show you, it's not only about the theory. Thank you, Secretary. It's not about only the theory, how I have been using. क्योंकि मैं बता ना कि मैं वही चीज दिखाता हूं या बताता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में किया है, right? So now I'm going to show you how I have used the power of content for building my business, right? Welcome Melvin ji, welcome Sabah. Good to see you all guys. Right, so this kind of a post, let's say this is the emotional post which I wrote, और इसमें आप देखेंगे ना the number of content, 69 comments, 72 comments. So one post is related to my father, one post is related to my son, right? These are emotional posts. If you go and read it, you'll find emotional content in this, correct? So this has got so many tractions. That is what I wanted to show कि ये कैसे काम करता है. यहाँ पे कोई प्रोफेशनल एलिमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कंटेंट. Moving forward, vulnerability and transformation. Again, you see there are 73 comments here and 53. Again, there is a vulnerability post which I did. I talked about that, you know, I need to sell a house, you know, during the pandemic, how it happened, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी मैंने अपनी स्टोरी लिखाई, बताई है. So I wanted to be vulnerable to my audience to know that what I went through. इसको आप उसमें भी डाल सकते हो जहां पे मैंने बोला कि आप अपने विंस एंड चैलेंजेस. सो आई कॉल इट विंस एंड चैलेंजेस को मिला के मैंने वल्नरेबिलिटी बता दिया. एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ आई बिकेम अ कोच, दैट वाज माय ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंजीनियर टू अ कोच, राइट? तो ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया. So this kind of a post are literally triggering the emotions of our audience. Now, lifestyle post, right? Like I'm a person who loves rain, I love nature. मैंने बारिश में भीगते हुए अपना एक वीडियो बनाया और उसको मैंने एक पोस्ट की तरह डाला. दैट ऑल्सो गॉट वेरी नाइस ट्रैक्शन, 72 कमेंट्स. एंड दिस इज अ पर्सनल पोस्ट व्हेन आई वाज शेयरिंग दैट वी सेलिब्रेटेड आवर 23rd मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी. यहाँ पे करीब 200 से ज्यादा कमेंट्स आए हुए. सो पीपल, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू टेल माई ऑडियंस दैट हे, आई एम लाइक यू. मैं किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं, मैं आपकी तरह हूं, मैं भी जिंदगी जी रहा हूं, मेरी भी लाइफ है, मैं भी एंजॉय कर रहा हूं. सो दैट, यू नो, इमोशंस आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द माय ऑडियंस एंड देयर इज अ रिलेटेबिलिटी कंटेंट. रिलेबिलिटी क्वोशिएंट है, वहां पे लोग उससे रिलेट करते हैं, राइट? दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके, नाउ दीज आर सम क्लाइंट रिजल्ट्स. अब मेरे क्लाइंट को रिजल्ट मिला, वो मैंने पोस्ट बना के डाला, वहां पे 60 कमेंट्स हुए. सिमिलरली दूसरे क्लाइंट को मिला, वहां पे 87 कमेंट्स मिले. तो यहाँ पे आई एम प्रूविंग माई वर्थ इन फ्रंट ऑफ माई ऑडियंस कि भाई आई एम ट्रस्टवर्दी, माई कस्टमर्स आर गेटिंग रिजल्ट्स आफ्टर लर्निंग फ्रॉम मी, राइट? तो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये अब आपके इमोशनल कंटेंट को नहीं, जबकि आपके यू नो लॉजिकल क्वेश्चन को ट्रिगर कर रहा है. यार इनके इमोशन को मैंने देख लिया, ही इज अ पर्सन लाइक अस, ही इज गुड, जेन्युइन, बट ही इज आल्सो कैपेबल ऑफ हेल्पिंग अदर्स, राइट? ही हैज गिवन रिजल्ट्स टू सो मेनी पीपल. तो ये चीज क्या करता है, उनके लॉजिकल ब्रेन को ट्रिगर करता है कि नहीं, दिस पर्सन इज वर्थ, राइट? ही कैन हेल्प, ही इज हेल्पिंग अदर्स, तो ही कैन आल्सो हेल्प. तो इस तरह के रिजल्ट्स वाले पोस्ट जो होते हैं ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं. सिमिलरली लेट्स से एक सेल्फ रिजल्ट पोस्ट हुआ, मैंने क्या किया, मेरे रिजल्ट्स क्या हुए. मैंने ये सारे पोस्ट जेन्युइन पोस्ट हैं जो मेरे प्रोफाइल पे ऑलरेडी हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, कॉम्बिनेशन मैंने निकाल के एग्जांपल के तौर पे बताया है. अब देखो ये वाला पोस्ट जुलाई का है, पिछले जुलाई का है, वेयर आई सेड दैट इट्स गॉन बी अ 10K मंथ, 4.5K ऑलरेडी डन, एंड इसमें 217 कमेंट्स हैं.
सेकेंड वाले पोस्ट पे 72 कमेंट्स है. So it's not about the numbers which I wanted to show you. What I'm trying to show you is that all these things, create an impression and trust in your audience mind. Right? तो आपको इस तरीके के भी पोस्ट करने की जरूरत है. Now another lead generation post, जो आपको मैंने बोला कि ऑफर भी करना है. When the emotional content is done, when people have accepted you as a friend, as a human being, as a good genuine person, उसके बाद वो देखना चाहते हैं कि प्रोफेशनली हाउ यू कैन हेल्प देम. तो इस तरह के पोस्ट वहां पे काम आते हैं. वेयर आई सेड दैट सी दीज आर लीड जनरेशन पोस्ट. मैंने यहाँ पे 218 कमेंट्स हुए हैं, यहाँ पे 78 कमेंट्स हुए हैं. इस तरह के पोस्ट ना फिर लीड जनरेशन में काम आते हैं. राइट. देन टेस्टिमोनियल पोस्ट. आई हैव मोर देन 100 टेस्टिमोनियल्स. इस तरह का टेक्स्ट टेस्टिमोनियल्स, उसमें 2-4 ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं. इस तरह के टेस्टिमोनियल क्या होता है? टेस्टिमोनियल आर something which a third person is talking about you, right? वो थर्ड पर्सन जब बोलता है तो ऑडियंस में ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है. इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो इस तरह के जो पोस्ट है ना, ये भी ट्रस्ट बिल्ड करने में काम आते हैं. सो नाउ यू सी हाउ मेनी वैरायटी ऑफ पोस्ट आई हैव शोन हियर. इमोशनल पोस्ट, vulnerability transformational post, lifestyle post, client result post, self result post, lead generation post, testimonial post. So now there are variety of posts which you can also create considering जो मैंने आपको बताया था कि आपने देखा था कि जो हमने शुरू जब किया था कि बहुत सारे पर्पस है हमारे कंटेंट बनाने के. इफ आई गो बैक आई कैन शो यू these are the purposes of creating a content, right? To attract, to engage, to nurture, to build trust, to remove objections, to take action. अब ये पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है. नाउ रिलेट दिस टू दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स व्हिच आई हैव शोन यू. ये सारा इन सारे पोस्ट से केटर हो रहा है. सो उस तरह के पोस्ट को हमको किस तरह के कंटेंट से रिलेट करके अपने ऑडियंस तक पहुंचना, दिस इज व्हाट आई हैव शोड यू. राइट? मेकिंग सेंस? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू what should be the future of content, क्योंकि इसमें कुछ पुराना मैंने आपको बताया. ये 2023 का पोस्ट है. टुडे वी आर इन 2024. एक साल पुराना पोस्ट है ऑलमोस्ट. अब एक साल पुराना पोस्ट एग्जैक्टली उस तरीके से आज के डेट में काम नहीं कर रहा है. आज क्या काम कर रहा है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. बट बिफोर दैट, नाउ आई वांट यू टू गिव मी अ रिव्यू ऑफ व्हाट हैज बीन डन टिल नाउ. मैं आपको एक रिव्यू का लिंक दूंगा. आई वांट यू ऑल टू गिव मी अ रिव्यू ऑन दिस थिंग ओनली, कि आपको अभी तक का मेरा कंटेंट कैसा लगा एंड हाउ डिड यू फाइंड दिस ट्रेनिंग. बिकॉज मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता. आई ओनली आस्क यू टू गिव मी अ गुड रिव्यू इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट सेइंग गुड रिव्यू, जो आपको अच्छा लगे वो आप दीजिए. मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट में, चैट में मैंने डाल दिया है. ओह, थैंक यू सो मच. गुड, थैंक यू. आई डिड नॉट सी द चैट्स बट थैंक यू सो मच. आई गॉट सो मेनी थिंग्स हियर. ओके, सो मैंने एक चैट में एक रिव्यू का लिंक डाला है. प्लीज रेट एंड रिव्यू माय दिस ट्रेनिंग एंड अगेन आई विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड विद द कंक्लूजन एंड द फ्यूचर ऑफ कंटेंट्स इन हार्डली 10-15 मोर मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. मैं ये क्या करता हूँ, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देता हूँ सो दैट इफ समबडी इज विलिंग टू डू दैट. ओके, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है, कोई बात नहीं है. ओके, सो टेक 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं है. 2-3 लाइन जरूर लिखिएगा, सिर्फ गुड, वेरी गुड मत लिखिएगा. प्लीज elaborate at least in 100 words so that people who have not joined, यदि मैं ये चीजें आगे उनको बताऊंगा तो it should help me and them as well, right? That's the purpose. So take 1 minute of your time please and do write whatever you have gone through in this almost 55 minutes or so. आप एक रिव्यू दिखिए जो आपको अच्छा लगे. आई एम नॉट सेइंग कि आपको अच्छा ही लिखना है. यदि आपको बुरा लगे तो बुरा भी लिखिए, अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, बट लिखिए जरूर जो आपको महसूस हुआ. इट इज फॉर मी टू इम्प्रूव ऑन दैट. आई एम पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट्स एंड आई वांट दिस टू improve more and more. So please do write it. And once it is done, please say done so that I move forward and take further questions and other things. Okay, I hope you all people are enjoying the training. Okay.
No, Sabha, it will not ask you to add photo. It will ask you to rate first. There would be some stars. 5 star में you have to rate. और rating के बाद then it will give you an option to write. Rating and then writing. हो जाए तो please say done so that we move forward. Hi Melvin ji, how are you doing? Done. Thank you Saket ji. Thank you Sabha. How about Siddharth ji, Anupam, Arati, Melvin ji, how are you all doing? करिए फिर आगे बढ़ते हैं. Take 10-15 seconds more. Complete it and we'll move ahead. Done. Thank you Siddharth ji. Okay. There's so many examples actually I wanted to give you. अभी वही है. In a short training, I'm able to do. Yeah, thank you so much, Melvin ji. चलिए ठीक है. I hope everybody has done. Let's move on to the next thing. Okay. So now, review आपने कर दिया. So these are few of the testimonials. I don't want to show you. You can go and check. बहुत सारे testimonials मैंने already डाल रखे हैं. What people have talked about me and my, learnings, how I do, what I do. ये सारे real life customers ने मुझे लिख के दिया है. मेरे mentees ने लिख के दिया है. And there are a lot of things, more than 100, I would say. छोटे-छोटे screenshots मैंने लेके रखे हुए हैं. Now the choice is here. There are people who are willing to do, and there are 5% of the people who shift the word, जिनको पास income, freedom, success, passion होता है. There are people who are saying still waiting and watching others to keep on moving. Now here I don't want to make you feel bad. My purpose is to give you some futuristic thing, क्योंकि आपको रुकना नहीं है, and I don't want you to stop anywhere in your life. So understand that you are the only sole responsible for you to make yourself success. कोई दूसरे के बदले में आके काम नहीं करेगा. दुनिया में ऐसा नहीं होता. You have to work for yourself. You understand how you're going to do it. Take good decisions. Make your life better. That is what everybody wants. Now here, coming back to the future content categories. आपको क्या करना है? आज की डेट में क्या चल रहा है? आज की डेट में जो चीजें चल रही है, so category wise I am telling you, live videos, native videos, user generated content, behind the scene content, and live Q&As. These are things which are running, and these are the things which are more attracting audience as of now. आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ. Right? Live video का मतलब you go live on one particular topic. Now there are people who are going live on Instagram. There are people who are going live on Facebook. There are people who are going live on LinkedIn as well. YouTube पे भी जा रहे हैं. There are different channels. People are going live. Live में क्या होता है ना? Even the algorithm helps you to reach more audience, and people see your expertise. क्योंकि आप live कर रहे हो. जैसे अभी मैं live कर रहा हूँ. मुझे कोई चीज देख के बोलने की जरूरत नहीं है. Slides मैंने बनाए हुए हैं just to explain you all those things. Right? So when you do live videos, people treat you as an expert. Correct? That is called a live video. Native video में क्या होता है? आप छोटे videos record करते हो. Right? That can be in the form of YouTube shorts, reels, or any even bigger than 1 minute. These are called native videos, जो आपने किसी टॉपिक पे बनाया. अगेन उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा. जो शुरू में मैंने बताया कि कुछ मिस्टेक्स जो हो रहे हैं, you have to research well. Go to the Google Content Planner, see what your audience is looking for, and based on that, do some research and then create content. ये recorded video हो गया जो native video के अंदर आता है. Now coming to the user generated content. User generated content क्या होता है? आपका user आपके बारे में क्या बोल रहा है? That comes under the category of result or testimonials. Right? तो ये हो गया user generated content which is most likely loved by most of the people. Then fourth one is behind the scenes content. आपने जिंदगी में क्या किया ये तो लोग आपको देख ही रहे हैं. Behind the scene लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जानने में, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज अवेलेबल हियर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. इंफॉर्मेशन किसी को नहीं चाहिए आज की डेट में.
लोगों को ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी नॉलेज क्या है, आपका एक्सपर्टीज क्या है, एंड व्हाट आर यू डूइंग बिहाइंड द सीन. सो बिहाइंड द सीन कंटेंट बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली ऑन स्टोरीज. आई टेल यू, आप उसको पोस्ट पे भी बना के डाल सकते हो, बट स्टोरीज पे ज्यादा काम करते हैं, पोस्ट पे भी काम करते हैं, एंड देन लाइव Q&As. So these are the 5 categories of best practices for future content, right? So इस चीज को आप ध्यान में रख के कंटेंट बनाइए. मैं ये नहीं कहता कि टेक्स्ट काम नहीं कर रहा, टेक्स्ट भी काम कर रहा है, बट दीज आर द 5 मेजर थिंग्स विच आर डूइंग बेटर देन अ टेक्स्ट पोस्ट. मैं भी रिकमेंड करता हूँ टेक्स्ट पोस्ट तब करिए. क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ पोस्ट, जो मैंने आपको बोला वैरायटी बनाने के लिए. एक ही चीज को पकड़ के नहीं रखना है. क्रिएट अ वैरायटी ऑफ कंटेंट फॉर योर ऑडियंस सो दैट दे आर नॉट बोर्ड, राइट? नाउ टाइप्स, ये तो मैंने कैटेगरी बताया, अब मैं आपको टाइप्स बताता हूं. पर्सनल के साथ ट्राई टू पुट सम एंटरटेनमेंट एलिमेंट, राइट? Try to be little funny. Secondly, when you are doing a value post, do some humor in that. These are the kinds of posts which are running better. जब आप एजुकेशनल पोस्ट कर रहे हैं, उसमें अपने लिव्ड एक्सपीरियंस को डालिए. दैट वर्क्स बेटर. कन्वर्सेशनल इज लाइक यू आर टॉकिंग टू समबडी, उस तरह के पोस्ट ज्यादा चलते हैं. एंड ऑब्वियसली एक्शन ओरिएंटेड और गेमिफाइड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर यूजिंग गेमिफिकेशन इन देयर पोस्ट. उसका एग्जांपल यदि मैं आपको दूं, तो आप एक तरह से का कोई क्विज कर दीजिए. अगेन क्विज कैन बी ट्रीटेड एज अ गेमिफाइड काइंड ऑफ अ पोस्ट. और लेट से आपने एक सिंपल कर दिया, 2+4+7 कितना होता है. बहुत सिंपल सा चीज है, लोग सोचने लगते हैं कि यार ये क्या हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन को क्यों पूछेगा. दैट काइंड्स ऑफ अ पोस्ट कम्स अंडर गेमिफिकेशन और एक्शन ओरिएंटेड, वेयर यू आर आस्किंग पीपल टू do some actions, and these actions are very simple in nature. That's it. Now I wanted to ask you, after all this done, ये तो theory मैंने आपको बता दिया, information is somewhere available, मैंने इसको अपने तरीके से present किया है. Now who all would be ready to implement this with me if I give you 1+4 sessions? So now the training part is over more or less. I wanted to ask you कि आपने theory तो हर जगह भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा. If I give you an option, native video is Anupam, it's about you creating a video on a particular topic, recording it and then sharing it with the world. That comes under native video, right? वो live video नहीं होता है, ठीक है? Okay, so my question is, who would be willing to implement all this thing with me if I give you 1+4 sessions? या खुद से ट्राई करना है? I don't mind, I'm just asking you. आपको लगता है आप कर लोगे? Well and good, nothing wrong in it. But what I have seen is, it seems simple, it is not. It seems simple, but it is not. Actually, it is not. Right? What will Keep. uh, हाँ सिद्धार्थ जी. I have a question, Alok ji. हाँ बताइए. You are giving 5 sessions, right? Total. Yeah. So, I mean, there must be some cost involved. in Yes, that. obviously there would be some cost involved. दुनिया में कोई Yeah. भी चीज फ्री में नहीं मिलती है. हाँ, that's why I'm Correct. asking what will be that? The cost would be $97 for 5 sessions. Okay, Right. got it. Yes. If anybody is okay, it's fine. Not okay, no issues. मेरा पॉइंट था क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन थिंग. थियरी तो आपको सब जगह मिल जाएगा, किसी न किसी फॉर्मेट में मिल ही जाएगा. एवरीबडी इज टीचिंग द थियरी पार्ट, बट द एक्चुअल थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन. And you need to have some kind of a hand holding where people are going to tell you whether it is right or wrong. जैसा मैं देखता रहता हूँ, इनफैक्ट सिद्धार्थ जी, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं आपका भी पोस्ट देखता रहता हूँ, कोई इंटरेक्शन नहीं होता. क्यों नहीं होता? You need to think about it, right? So there are so many things behind it. I mean, पहले से better है. That's okay. So वही मैं कह रहा हूँ कि बेटर तो धीरे धीरे होता ही रहेगा. अल्टीमेटली हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू वेट फॉर योर कंटेंट टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर ऑडियंस, राइट? तो उसको एक्सपेडाइट करना है, चीजें करनी है, तो यू नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम एंड मनी फॉर यू with somebody. I'm not saying with me or anybody. आप किसी के साथ भी काम करिए, बट उसको अच्छे से सीख के करिए, क्योंकि क्या है ना, जेनरिक चीजें तो हर कोई बता देता है, राइट? स्पेसिफिक चीजें जो एक्चुअली काम करनी है और आपके लिए काम करनी है, दैट नीड्स टू बी shown to the world. That is how these things are working. Fine. So
If anybody wants to, after, we have most of the people know me. I think Arate has been joining for the very first time. So if you want to book a call with me after, seeing all this, if you want to explore something more on a personal level, I'll be putting the link of the call booking inside the group as well, so that if you wish, you can book a call with me, and that is what I want. And I wish you all the best. If you have any questions, please do ask. Now my training is over. I'm open to take any of your questions related to any of the things related to today's training or anything else. You are most welcome. Anybody? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. सर एक क्वेश्चन है, हाँ अनुपम बताइए. जैसा आपने ये बताया था फनल में टोफू मोफू एंड ये जो बॉटम ऑफ द फनल, यस अभी हर एक के लिए जो कंटेंट रहेगा हमारा अलग अलग रहेगा. बिल्कुल. हाउ टू डिसाइड कि कौन सा कंटेंट देना, बिकॉज अलग अलग लेवल के लोग हैं फनल में. एग्जैक्टली. देखिए, यदि आप एक बिगिनर हो तो जी. बिगिनर के लिए टोफू और मोफू इंपॉर्टेंट है. अभी बोफू पे कोई जाएगा नहीं. अभी आपने ट्रस्ट बिल्ड किया नहीं, लोग आपको जानते ही नहीं है. लेट्स से जी. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू रॉन्ग. आज अभी कोच बने, आज उनका पहला पोस्ट आया, पहले पोस्ट में सीटीए रहता है, बुक कॉल विथ मी. आप बताओ, जो इंसान पहली बार पोस्ट कर रहा है या 2 बार 4 बार 10 बार किया है, अभी उसने ना ऑडियंस बनाया, ना ऑडियंस उसको ढंग से जानता है, क्या कॉल टू एक्शन वो सही है? So that call to action is for bottom the funnel, where you are asking people to book a call with you, right? तो वहां पे वो call to action is not the right thing. People do start copying from other people. यार उसने किया मैं भी करता हूं, but आपके लिए नहीं applicable है. If you have not built your audience, if you have not built that kind of a trust, कौन बुक करेगा कॉल आपके साथ? या तुक्के में बुक कर भी दिया, एक बात में क्या, तुक्के में कॉल बुक भी कर दिया, तो क्या वो आपसे कोई चीज परचेज करेगा, आपकी सर्विसेज लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि वो ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं है. सो टू बिल्ड ट्रस्ट, उसके पहले अलग अलग कॉल टू एक्शन होने चाहिए. सो जो आपका क्वेश्चन है कि हर तरीके के कंटेंट हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. यू हैव टू रीच टू अ लेवल. यदि आप बिगिनर हो तो पहले आपको सबसे पहले टॉप ऑफ द फनल को कैटर करना है, जहां पे आपको इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशनल पोस्ट ज्यादा करने माइंडेड. मैं नहीं कह रहा कि 100% वही करना है. उसका एलिमेंट जो वैल्यू वाला, नर्चरिंग वाला, वो एलिमेंट कम होगा, राइट? और ऑफर वाला एकदम से नहीं होगा. जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते जाते हो, तो टॉप ऑफ द फनल के लिए तो जरूर रहेगा एक पोस्ट, फिर मिडिल ऑफ द फनल के लिए पोस्ट ज्यादा हो जाएंगे, राइट? वो रेशियो चेंज हो जाएगा. इसके आगे बियॉन्ड जब आप जाते हो तो टॉप ऑफ द फनल भी रहेगा, बॉटम ऑफ द फनल भी रहेगा, और नीचे वाला सॉरी मिडिल ऑफ द फनल भी रहेगा. बॉटम ऑफ द फनल के लिए भी आपको कंटेंट करना पड़ेगा, वेयर यू आर ऑफरिंग समथिंग, राइट? इट डिपेंड्स अगेन, आपका जो स्टेज है उसके हिसाब से वो चीजें हमें कैटेगराइज करनी पड़ेंगी कि हाँ, एक हफ्ता में जो हम मान लीजिए 6 पोस्ट बना रहे हैं या 5 पोस्ट बना रहे हैं, उसमें कौन से पोस्ट किसके लिए होने चाहिए, राइट? मेक सेंस? गुड, थैंक यू सो मच. ओके, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन अनुपम? आंसर हो गया? गुड. ओके, यस आरती, गुड. आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? गुड. If you want to book a call with me, I'll share that link inside the group. You are most welcome. And I'm looking forward. If you have any questions, please don't hesitate. And I do this training every Saturday on something or the other. कुछ ना कुछ टॉपिक पे तो मैं करता रहता हूँ. आज वाला टॉपिक भी थोड़ा अच्छा चल गया, 1 घंटा चला गया, क्योंकि I wanted to explain more and more. Yeah, thank you Saurabh ji. Thank you so much. Good to see you here. And yes, anybody Sir, one else? question है, हाँ बता सतीश जी. सकते हैं? हाँ प्लीज गो अहेड. सर एक कंफ्यूजन है, मेरे दिमाग में चलता है. जस्ट लाइक द थिंग्स इज दैट सपोज आई एम रेडी टू पोस्ट अ कंटेंट अबाउट some kind of personal story, maybe from my professional background, maybe from my personal account, right? Okay. It's a complete thing that. So how do I categorize that this is for this nurturing the people, or particularly for the engagement of the people, or to generate the leads or something like that? Shall I categorize first in our head first, or just ऐसे ही पोस्ट करता हूँ, नहीं मुझे अच्छा लगा मैं ऐसे ही पोस्ट करूँ? कैसे डिसाइड करें? आपको पहले माइंड में डिसाइड करना है कि लेट्स से इफ यू आर अ बिगिनर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ,
वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हाउ डू यू नो कि आपने ऑडियंस बिल्ड किया है कि नहीं किया है? Do you have any mechanism? I'll tell you, there is a mechanism to tell you, to make you understand कि आपने audience build किया है नहीं किया है. As simple as that. If you create some kind of a post and you get more engagements, right? That means people are liking your content, people are engaging with your content, right? Now you want more new people to join you or make friends with you. तो वहां पे जो मैंने बोला, जो आपका क्वेश्चन था कि पर्सनल स्टोरी हमेशा इमोशन को ट्रिगर करती है, राइट? तो वहां पे टॉप ऑफ द फनल वाले लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो ऑलरेडी हैं वो देख करके उनको लगा अच्छा चलो मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, उनको भी इनरिचमेंट होती है. सो द पर्पस हियर व्हेन यू से दैट यू वांट टू शेयर अ पर्सनल स्टोरी, it is primarily to take care of the people who are on the top of the funnel, who are new to you, right? And obviously जो पुराने लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो जान के उनका कुछ बुरा हो जाएगा, वो उनको ऐड ही करेगा, उनके इमोशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा कि क्या अच्छा ये स्टोरी तो मुझे पता ही नहीं था. लेट्स से इफ आई शेयर यू माय स्टोरी, आपको लगा यार इतना तो मैं जानता, तो एक नई स्टोरी मुझे पता चली, काइंड ऑफ. So, but primarily it is for new people to get attracted towards you and start building that relationship. It's a starting of the relationship actually. So gradually we can expect ki, if I do consistently about the some kind of emotional attachment stories or to something, so people can move from the top of the funnel to the middle of the funnel. There is a high Exactly. chance. Exactly. वही होता ही है ना. देखिए, पहला आदमी जो आपको जाना नहीं, पहले आपको जान गया, जानने के बाद वो जब आपका पोस्ट उनके फीड पे जाने लगेगा तो वो और देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जानेंगे. जब थोड़ा जानेंगे तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा उनका कि चलो यार इस इंसान को मैं जानता हूँ, अब मैंने देखा इनका ये भी देखा, ये भी करा, तो वो ट्रस्ट एलिमेंट धीरे 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 एड ऑन होता जाता है. जो मैंने बोला ना कि ट्रस्ट इज समथिंग विच यू कैन नॉट बाय, इट बिल्ड्स विथ टाइम एंड विथ योर एक्शंस. तो वो धीरे धीरे आप एक बंदा जो टॉप ऑफ द फनल है, वो धीरे 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 नीचे आता है, तभी जाकर के वो बाद में कन्वर्ट भी करता है. जब वो पूरा मैच्योर हो गया, जब उसको आप पे पूरा भरोसा हो गया, जब उसको लगा कि यस दिस पर्सन कैन हेल्प मी एंड ही इज रेडी टू टेक एक्शन, दैट पर्सन कन्वर्ट्स आफ्टर दैट, राइट? तो हमेशा फनलिंग का पर्पस ही ये है कि somebody coming from top and slowly gradually going down converting and new people coming in and so on so forth. तो दिस इज, तभी तो इसका नाम फनल पड़ा कि ऊपर में बहुत बड़ा सा एरिया है, वहां से धीरे धीरे आप नैरो करते जाते हो, राइट? Channelize करते हैं उसमें से. चैनलाइज करते हैं, यस. सो यू आर एक्चुअली मेकिंग अ वे फॉर द पर्सन हु इज अननोन to build more trust, know more about you, and then come to a conclusion that okay, now that person is good for me to go with, right? Did I answer your question? Thank you so much, sir. Perfectly. Okay. Welcome. Thank you. Welcome. Good. Anybody else has a question? All done? Good. Chaliye, I hope it was nice and I'm looking forward. Yes, Sabha, tell me, you have a question. Tell me what you have. Hello. Yes, Sabha. How are you, sir? Good. I'm good. How about you? I'm good, sir. I want to ask that you have shown the presentation about content. So I want to ask that what is content writing and blogging? Blogging Today is, now, go ahead. today nowadays, it's they are offering content writing and blogging free online courses. So what is this? What is the benefit of doing this course, content writing, and what is the demand of content writing in business field and in other fields? बहुत अच्छा डिमांड है. कंटेंट राइटिंग से आप कॉपी राइटिंग में जाते हो एंड एनीथिंग विच यू राइट ऑन द सोशल मीडिया इज अ कंटेंट माइंडेड. आप एक एड बनाते हो, उसकी कॉपी भी, आप एक लैंडिंग पेज बनाते हो, उसमें भी जो आप लिखते हो वो भी एक कंटेंट है. आप एक वेबसाइट बनाते हो, उसमें भी जो आप लिखते हो वो भी एक कंटेंट ही है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंटेंट विच यू क्रिएट ऑन दिस वर्चुअल वर्ल्ड और दिस डिजिटल वर्ल्ड, जिनके सबके अलग अलग पर्पस होते हैं. यदि आपने कंटेंट राइटिंग सीख लिया तो यू कैन क्रिएट कंटेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट? आप एड के लिए कॉपी लिख सकते हो, आप न्यूज़लेटर के लिए कॉपी लिख सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग के लिए कॉपीज लिख सकते हो, आप सिंपल जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उसके लिए कंटेंट लिख सकते हो. सो द पोटेंशियल इज ह्यूज, आई वुड से.
आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, जैसे ब्लॉगिंग से लोग पैसा भी कमाते हैं, देयर आर पीपल हु आर बिग ब्लॉगर्स। तो कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इफ यू वांट टू लर्न इट, डेफिनेटली यू शुड बी लर्निंग अबाउट इट सो दैट यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। बहुत पैसा है इसमें। देयर आर पीपल हु आर घोस्ट राइटिंग। मान लीजिए कोई कोच है, उसको बढ़िया से लिखने नहीं आता, इफ यू आर अ गुड कंटेंट राइटर यू कैन चार्ज मनी to write on behalf of them, right? So there is a huge potential in content writing and blogging. Yes, Abba? Sir, what is blogging? Blogging is a process, I would say, जिसमें आप एक डोमेन लेते हो, उस डोमेन पे आपका एक आर्टिकल टाइप का जाता है and that can be monetized over a period of time. So blogging is again I would say further step to कंटेंट राइटिंग के लिखना उसमें भी है। उसमें एक टॉपिक पे आप लिखते हो, जिस टॉपिक के आप एक्सपर्ट हो उस टॉपिक पे आप लिखते हो और वो जाता है बहुत सारे लोगों के पास, पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट, और एक बार एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो यू कैन चार्ज इवन मनी फॉर दैट, उसको पढ़ाने के लिए। लेट्स से कि आपने इतने अच्छे कंटेंट लिखने शुरू किए उस ब्लॉग में कि लोग उनको पढ़ना शुरू किए, तो एक टाइम के बाद आप उसमें कैपिंग कर सकते हो कि टू रीड दिस ब्लॉग यू नीड टू पे मी समथिंग, राइट? सो दैट इज हाउ ब्लॉगिंग वर्क्स। मेक सेंस? तो सर हम न्यूज़पेपर में आर्टिकल राइटिंग करते हैं, तो आर्टिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग सेम है या ये डिफरेंट है? सी, आर्टिकल भी तो एक कंटेंट ही है ना। जो आप आर्टिकल लिख रहे हो वो भी एक कंटेंट ही है। अब न्यूज़पेपर का जो कंटेंट है और डिजिटल का जो कंटेंट है दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, राइट? बट एक्चुअली आप कंटेंट ही तो लिख रहे हो, है कि नहीं? यस अब Yes, sir. My questions are finished. ओके, गुड, थैंक यू सो मच। होप सर आई हैव आंसर्ड। आपको उर्दू बोलना किसने सिखाई है? आप इतनी अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरी उर्दू बोलते हैं। मैंने उर्दू कहाँ बोला, मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ। बट लेकिन उर्दू उर्दू के और लफ्ज आते हैं हिंदी तो मुझे। आपस में हाँ, मिलती जुलती है। मैं पढ़ते रहता हूँ, साहित्य से मेरा लगाव है, लिटरेचर इज वन ऑफ माय पैशन। मैं हिंदी और उर्दू तो नहीं पढ़ता, बट हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि यूज होते हैं हिंदी पुस्तकों में, तो वही मैंने पढ़ा है, तो उन सब चीजों को मैं यूज करता हूँ। अलग से तो मैंने सर नहीं पढ़ी। हिंदी और उर्दू आपस में तो कुछ वर्ड्स तो मिलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली वही रहता है। चलिए, गुड, थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू सो मच सैकत जी, अनुपम जी, सौरभ जी सर एक एंड। क्वेश्चन फिर से आ गया दिमाग हाँ में आ हाँ, गया, बता सकते प्लीज हैं? प्लीज, हाँ हाँ एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। सावा जी का क्वेश्चन से मुझे ये रिलेटेड लगा उसमें। हाँ बताइए बताइए। एंड दिस इज द ब्लॉगिंग सी सेड। तो ब्लॉगिंग हम्म, हम लोग जानते हैं, जो आपने क्लैरिफाई किया। सर राइट। एक चीज और भी होता है कि दैट इज न्यूज लेटर, हम्म, राइट? तो न्यूज राइट लेटर बहुत पॉपुलर है, राइट? राइट, हाँ हाँ। So can we consider newsletter is also a subset of blogging or related anywhere, or is a complete different thing? How can it, what is the what it should be considered and what No, is the difference? newsletter is not a subject of blogging. It is entirely a different set of activity, but again it is a part of your content creation. अब क्या होता है, न्यूज़लेटर का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वही बात है, न्यूज़लेटर को भी आप मोनेटाइज कर सकते हो। वंस यू गेट वंस सी यू आर एन एक्सपर्ट, यू आर राइटिंग ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक, वो पर्टिकुलर टॉपिक आप जाते हो, न्यूज़लेटर कुड बी वीकली, बाई वीकली, मंथली, जैसा आप फ्रीक्वेंसी सेट करिए। एंड यदि आपका व्यूअर, जो आपका रीडर्स हैं, यदि उनको अच्छा लगने लगा तो देयर वुड बी अ टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली, न्यूज़लेटर एंड ब्लॉगिंग आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट दोनों के प्लेटफॉर्म थोड़े से अलग हो जाते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि कंटेंट आप उस पर भी लिख रहे हो और वही सब्जेक्ट है आपका। Right, right. सम पीपल चूज न्यूज़लेटर, सम पीपल चूज ब्लॉगिंग, क्योंकि ब्लॉगिंग का एक्चुअली स्कोप थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बिकॉज इट इज ओपन टू ऑल। न्यूज़लेटर इज लिटिल रिस्ट्रिक्टेड, बट अगेन इफ यू हैव मल्टीपल पीपल सब्सक्राइबिंग फॉर इट, तो हो सकता है कि ब्लॉगिंग से ज्यादा आपको वो रिजल्ट दे पाए। तो सबके लिए अलग अलग वर्क करता है, बट अगेन इट इज अ कंटेंट ओनली विच यू आर पुटिंग इन फॉर्म ऑफ योर एक्सपर्टीज। So more or less, newsletter is a for the specific group of people who subscribe the newsletter or something. Yes, yes, Blogging is yes, open yes. for them. And blogging is open, exactly. Thank you, sir. Thank you. Great. Welcome. Good. So I hope we are done for the day. I hope you have spent a quality time and you have got worth what I had promised. And I'm looking forward to another training next Saturday again. And with a थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा इस बार, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बड़ा हो गया, but yes, ठीक है, it will be
Yeah, welcome, Saket ji. It will be again a amazing outset training. छोटी रखूंगा और ज्यादा अच्छा से करूंगा ताकि और ज्यादा हमें बात करने का मौका मिले और हम आगे बढ़ते रहें इसी तरीके से. ठीक है? Done. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Anupam. Thank you so much, Siddharth ji, Sabha, Saurabh ji, and Saket ji. I'm looking forward to such more trainings and your active participation. Thank you so much. Take care. Bye-bye. Thank you, sir. Bye bye. Bye-bye.